Okay. Okay, ma'am. Okay, so last part of the hydrocarbon chapter is the alkynes. Alkynes are again the unsaturated hydrocarbons. These are the unsaturated hydrocarbons having the general formula. What is the general formula for the alkyne, beta? CnH2n minus of 2. This is the general formula for the alkynes. And minimum value n की 2 हो सकती है because triple bonded compound है ये. There is a triple bond present between the two carbon atoms in the alkynes. तो n की value 2 substitute करोगे, then you will be getting C2 H2 is a 4 minus 2 2. So this is called as a ethyne. Ethyne is the IUPAC name, and this is a IUPAC name, and it is also called as acetylene. Acetylene is a common name. कैसे बनाएंगे इसकी structure? C triple bond C, and then is the H. Here is the H. Triple bond में एक sigma bond है, and 2 here are the pi bonds. This is also sigma, this is also sigma. अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है तो सिग्मा कैलकुलेट कर लो एक कार्बन पे. तो एक कार्बन पे ये दो सिग्मा है, तो 2 सिग्मा ऑन ईच कार्बन एटम. So the hybridization is sp hybridization. Similarly for this carbon atom. तो let's draw the structure. इसका वैसे केमिकल बॉन्डिंग में भी हम पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार देख लो. कार्बन 1 in the excited state, it is having the 2s2 and the 2p3. This is the electronic configuration. Carbon 2 in the excited state, this is again having the 2s1 and 2p3. And sp hybridization है, तो इस तरीके से हम कंबाइन कर लेंगे. तो this is the sp hybridization. As it is a sp hybridization, ये जो आपके बिना और hybridization के orbitals है, without hybridization, they are called as a unhybrid orbitals. The unhybridized orbitals. एंड देखो कैसे सिग्मा बॉन्ड बने थे. पहला तो ये कार्बन कार्बन में सिग्मा होगा. अनदर इज द 1 हाइड्रोजन एटम ओवर टू द ईच कार्बन. दिस इज द सिग्मा. एंड रेस्ट दीज टू आर पाई. दे overlap sidewise. This is a pi bonding formed between them. This is how the molecule is formed. Now let's check out for the orbital picture of this. Regarding the orbital picture, there would be the one carbon atom जिसके जो sp हाइब्रिडाइज्ड हैं. देखो एक कार्बन पे 2 sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो पहले तो वो अपने आप को इस तरह के अरेंजमेंट में रखेंगे कि उनमें कोई भी रिपल्शंस ना हो. इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये लीनियर अरेंजमेंट आया. दिस इज द 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑन ईच कार्बन एटम. इसकी बड़ी लोब में दूसरे की छोटी लोब प्रेजेंट है. तो ये आ गया. This is the one hydrogen atom over to this, and this is again one hydrogen atom over to this. तो दो तो हाइड्रोजन एटम हो गए यहाँ पे. एक सिग्मा बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन से, एक एक सिग्मा बॉन्ड हो गया इधर से. तो पर कार्बन चेक करें तो सिग्मा हमने बना लिए हैं. नाउ रेस्ट इज द पाई. पाई का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो पाई के लिए दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो सेम ओरिएंटेशन में है वो इस तरह से कंबाइन करेंगे, और ऑपोजिट ओरिएंटेशन वाले आपस में कंबाइन करेंगे. तो दीज आर द 2 पाई बॉन्ड्स.
present in the ethyne molecule. So this is orbital picture. Geometry is the linear. Geometry में pi bond कोई role play नहीं करता है. This is on the basis of the sigma bonds only. जो hybrid orbitals खुद ऐसे shape में आए गए हैं. This is the orbital picture. तो ये linear हो गया and 180 degrees the bond angle. Okay. So this is about the hybridization, and now there is a method of preparation of the alkynes. Regarding the method of preparation of alkyne, देखो alkenes और alkanes को तो हमने prepare कर लिया था from your unsaturated hydrocarbon. तो ये तो खुद ही maximum unsaturated है, तो इनके लिए पहला मेथड जो हम यूज करेंगे उसे वैसे वाले अदर हाइड्रोकार्बन से नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं इसको. फर्स्ट इज द फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड. अब कैल्शियम कार्बाइड को लिखेंगे कैसे, पहले ये भी सीख लो. कैल्शियम होता है कैल्शियम Ca और ऊपर 2+ चार्ज, ये कैल्शियम हो गया. कार्बाइड होता है C2 नेगेटिव. देखो कार्बाइड की स्ट्रक्चर होती है जो आपका इथाइन मॉलिक्यूल है ना, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर होती है. यहाँ से 2 हाइड्रोजन को रिमूव किया है और यहाँ पे ऐसे चार्ज आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे दोनों साइड. अगर पर कार्बन आप इलेक्ट्रॉन काउंट देखो तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो दोनों पे एक नेगेटिव होगा और इसे कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा जाता है C2 नेगेटिव. तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला बनेगा CaC2. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द कैल्शियम कार्बाइड. एंड व्हेन यू हैव टू फॉर्म द एसिटिलीन, तो सबसे पहले तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता कैसे है कैल्शियम कार्बाइड. तो कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए पहले हमें कैल्शियम ऑक्साइड जनरेट करना होता है, और ये सब बच्चे जानते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी. अब उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड को 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन के साथ ट्रीट कर लो, तो आपके पास बनेगा कैल्शियम कार्बाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. तो पहला तो हमने कैल्शियम कार्बाइड प्रिपेयर किया, उसके बाद कैल्शियम कार्बाइड की कर दो हाइड्रोलिसिस. तो whenever you give the hydrolysis for the calcium carbide, तो ये वापस से हाइड्रोक्साइड जनरेट कर देगा और आपके पास फॉर्म हो जाएगा एसिटिलीन. तो दिस इज द प्रिपरेशन फॉर द, इसको क्विक लाइम से प्रिपेयर करना बोलते हैं. दिस इज द प्रिपरेशन फ्रॉम द क्विक लाइम एंड द वाटर हाइड्रोलिसिस करके. क्विक लाइम कोक भी इसमें यूज होता है, मतलब कार्बन भी यूज होता है. तो लाइम से प्रेपरेशन का रिएक्शन है ये एल्काइंस का. बट इससे कौन सी एल्काइन बनती है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाली. तो यहाँ से हमने प्रिपेयर किया इथाइन. लेट्स स्टडी द अनदर मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्काइन. तो नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम द विसिनल डाइहैलाइड. एल्कीन्स को भी हमने किया था रिएक्शन विसिनल डाइहैलाइड से प्रिपेयर. फ्रॉम द विसिनल डाइहैलाइड्स, वहां पे भी इसका यूज किया था. एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, विसिनल डाइहैलाइड्स होते हैं जब एडजेसेंट कार्बन एटम पे सेम ग्रुप लगे हो, जैसे CH3 हो गया, CHBr एंड CHBr 1 2 3, और एक हाइड्रोजन को ओपन अप करके लिख देते हैं. ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, यू विल गेट टू नो. अब इसमें हम डालेंगे एल्कोहलिक KOH. जैसे कि आप सबको पता है कि अल्कोहलिक KOH एक बेस होता है, तो जब बेस होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा. सिरजेफ रूल हमने पढ़ा था एल्कीन की फॉर्मेशन में. तो यहाँ पे 2 टाइम्स यूज होगा ये अल्कोहलिक KOH. पहली बार में यहाँ से H चला जाएगा और यहाँ से Br चला जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा सेंटर में. तो पहला जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो तो ये फॉर्म होगा CH3 CBr डबल बॉन्ड CH2. नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ से Br और यहाँ से H चला जाएगा KOH की प्रेजेंस में अल्कोहलिक. अब फिर ये डबल बॉन्ड कहाँ से आ रहा है, सबको पता है, लास्ट क्लास में बताया था कि C और H के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है. Br नेगेटिव जाता है, H प्लस जाता है, H अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है. तो अब की बार फॉर्म होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH.
दिस इज अ मेथड। आप इसको एक ही रिएक्शन में भी दिखा सकते हो, 2 मॉलिक्यूल्स रख के। माइनस क्या होगा, माइनस ऑफ KBr और माइनस ऑफ वाटर होगा। Here again minus of KBr or minus of water होगा। This is how you have prepared the alkynes, but you will be seeing कि दोनों methods में हमने minimum number of carbon atom वाला alkyne prepare किया है। तो whether it would be possible to prepare the alkynes with the more number of carbon atoms, उसके लिए क्या करेंगे, या higher पे जाना है, ascending of a chain पे जाना है, तो उसके लिए कैसे किया जाएगा। उसके लिए पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टीज बताती हूँ एल्काइंस की, देन विल गेट टू नो। इज दैट क्लियर अप टू दिस? यस मैम। देखो जो आपकी एल्काइंस है ना, उनका होता है एसिडिक करेक्टर। तो फर्स्ट विल स्टडी द एसिडिक करेक्टर ऑफ द एल्काइंस। तो रिगार्डिंग द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द एल्काइंस कैसे पता लगा मुझे, देखो रफली अगर आप चेक करो तो जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में होगा 1 प्लस डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, 25% एस करेक्टर। जो आपकी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उस पे होगा 33% एस करेक्टर। और जो आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है उस पे होगा 50% एस करेक्टर। ठीक है, तो जो आपकी एल्काइंस हैं, स्पेशली जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, दैट इज अ टर्मिनल एल्काइंस। किसको बोलते हैं हम टर्मिनल एल्काइंस? जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ पे देखो ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। sp हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा। बताती हूँ क्यों। तो ये पहली बात, तो इसको टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं, पहली एग्जांपल तो ये हो गई। दूसरा हो सकता है कि एक साइड पे हाइड्रोजन हो और दूसरी साइड पे कुछ कार्बन हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो ये भी एक टर्मिनल एल्काइन है क्योंकि यहाँ पे भी एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जहां पे sp हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल एल्काइन। अब टर्मिनल एल्काइंस में होता क्या है, जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है वहां पे 50% एस करेक्टर होता है। तो 50% एस करेक्टर होने के कारण वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो ये वाला कार्बन एटम इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। नॉन टर्मिनल में ऐसा क्यों नहीं होता है कि नॉन टर्मिनल में कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा है, तो कार्बन और कार्बन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, बोथ आर ऑफ द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन दैट केस यू कांट से कि वो एसिडिक करेक्टर रखते हैं, बिकॉज कार्बन कार्बन से उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाएगा जितना कार्बन हाइड्रोजन से कर पाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू द कार्बन। तो अब चेक करते हैं इसमें, अगर हमारे पास है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन, यानी कि जो टर्मिनल एल्काइन है, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो यहाँ पे H+ रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे फॉर्म हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ये नेगेटिव हो गया, ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस आ जाएगा H+। तो ये था तुम्हारा एसिटिलीन, इसको एसिटिलीन बोलते हैं, इसको एसिटिलाइनाइड आयन हो गया ये। ठीक है, तो ये एसिटिलाइनाइड आयन हो गया, मतलब इसने एनायन जनरेट कर दिया, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया। ठीक है, अब इसका हमें फायदा क्या है, लेट अस सपोज कि मैंने इसको ट्रीट किया किसी मेटल के साथ, बिकॉज मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द हाइड्रोजन। जब मैं टर्मिनल एल्काइन को किसी मेटल के साथ ट्रीट कर लूंगी तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो व्हाट इज अ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव ओवर हियर, हाइड्रोजन इज अ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा सोडियम के साथ, तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। here would be the partial negative and here would be the partial positive. this is called as, क्योंकि एक सोडियम लगा तो इसको बोलेंगे मोनोसोडियम, क्योंकि इसका नाम इथाइन है तो इसे इथाइनाइड आयन भी बोलते हैं। तो इथाइनाइड बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे तो आयन नहीं है, न्यूट्रल हो गया ये। और साथ में जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है उसको हाफ ऑफ हाइड्रोजन करके गैस की फॉर्म में निकाल दो, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अब ये रिएक्शन 2 बार भी हो सकता है, मतलब इफ यू reacted with the 2 moles of sodium तो आपके पास डाई सोडियम एनायन फॉर्म हो जाएगा।
This is partial negative, this is partial positive, triple bond, this is partial negative, and this is partial positive. तो again half molecules of hydrogen would be there. यहाँ पे form हो जाएगा disodium. So this is a disodium ethynide. So these two reactions shows that the alkynes are acidic in nature. Or especially what type of alkynes are acidic in nature? That is your this one टर्मिनल एल्काइंस, जहाँ पे sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे क्या लगा हुआ है, लगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर ये एसिड है तो मैंने तो सोडियम के साथ रिएक्ट किया ना, आप इसको बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हो। देखो ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये भी टर्मिनल एल्काइन है, तो इसको NaNH2 के साथ ट्रीट किया और डाउनवर्ड में नॉन टर्मिनल ले ली, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये नॉन टर्मिनल है, इसको भी NaNH2 के साथ रिएक्ट किया। अब NaNH2 में ये तो आपका बेस है ना, NH2 प्लस बेस है, और यहाँ पे एसिड है, तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। NH2 और H प्लस कंबाइन करके NH3 दे देंगे, और बाकी आपके पास क्या बचा, C के साथ बचा Na ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो प्रोडक्ट तो वही बना पर अमोनिया गैस रिलीज हो गई। ठीक है, और ये आपके पास जो प्रोडक्ट बन पाया, क्या रीजन था, क्योंकि ये एसिडिक था। यहाँ पे आंसर आ जाएगा नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है। तो दिस इज द वन ऑफ द टेस्ट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्मिनल एंड द नॉन टर्मिनल। एक और टेस्ट मुझे ध्यान में आ रहा है, लास्ट क्लास में तुमने एल्कीन में ब्रोमीन का एडिशन किया था, यस और नो? सबको पता है कि एल्कीन में ब्रोमीन का एडिशन करोगे तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और बीआर बीआर लग जाएगा वहां पे। तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो वहां पे भी अनसैचुरेशन का टेस्ट है वो, द एल्कीन और एल्काइन वो टेस्ट देंगे। ब्रोमीन वाटर का कलर होता है, ठीक है, तो पहले एल्कीन कलर लेस थी, बाद में कलर आ गया। या आप ऐसा करो ना, पहले ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन किया तो उसमें अनसेचुरेशन थी, तो आपके पास कंपाउंड जो था वो बाद में डीकलराइज हो गया, क्योंकि ब्रोमीन तो ऐड हो गई उसमें, उसका कलर चला गया। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ टेस्ट ऑफ द अनसेचुरेशन। ठीक है, तो अगर हमें ऑर्डर लगाना है एसिडिक करेक्टर का, तो हम कैसे लगाएंगे? तो एसिडिक करेक्टर के ऑर्डर में देखो, एल्कीन एल्काइन एल्केन का तो बहुत क्लियर है, सबसे ज्यादा एल्काइंस होंगी एसिडिक, उसके बाद होंगी एल्कीन्स, एंड आफ्टर दैट होंगी आपकी एल्केन्स। और इसके लिए रेफरेंस के लिए आप फिर से लिख सकते हो, वैसे मैंने लास्ट स्लाइड में लिखा भी है कि एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस करेक्टर, एज वी हैव डन इन द लास्ट स्लाइड टू। द परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका एसिडिक करेक्टर होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये देखो, ये है आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये है आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज, ये है आपके पास sp हाइब्रिडाइज। पूरा मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो, आई हैव जस्ट गिवन अ रेफरेंस। ठीक है, और अगर आपके पास टर्मिनल और नॉन टर्मिनल के केस में कंपैरिजन करना है तो भी आराम से हो सकता है। तो जहाँ पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन टर्मिनल है वो ज्यादा एसिडिक है, जहाँ पे एक टर्मिनल हाइड्रोजन है और दूसरे के केस में मिथाइल ग्रुप है वो उससे कम है, और जहाँ पे दोनों ही केस में कार्बन एटम अटैच है, टर्मिनल मिथाइल हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वो बिल्कुल कम एसिडिक है। दिस इज हाउ यू आर गिविंग द एसिडिक करेक्टर ऑफ दिस। अब इस रिएक्शन का यूज क्या है? इस रिएक्शन का यूज ये है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन जब आपने देखा, तो चाहे हमने इसमें लाइम वाला मेथड यूज किया हो या हमने यूज किया हो विसिनल डाइहैलाइड वाला, in both of these reaction we have prepared the alkynes which are having the 2 carbon atoms, फर्स्ट मेंबर को हमने प्रिपेयर किया। तो दिस मेथड कैन बी यूटिलाइज्ड इन असेंडिंग ऑफ अ चेन, यानी कि टू प्रिपेयर द एल्काइंस विद द हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये कन्वर्जन वहां पे यूज होगी, जैसे वुड्स रिएक्शन करते थे ना एल्केन्स में, 2 कार्बन एटम वाला है अल्काइल हैलाइड लेके उसको 4 कार्बन एटम वाली एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी टू प्रिपेयर द एल्काइंस विद द हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसके लिए इसका यूज होता है, एल्केन्स विद द हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए आपको एल्काइंस प्रिपेयर करना है, तो कैसे करेंगे? देखो रिएक्शन वही यूज करेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसको मेटल से ट्रीट किया, लाइक सोडियम से ट्रीट किया, तो यू कैन ऑब्टेन द सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट। उसके बाद क्या हुआ, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na प्लस। उसके बाद क्या करोगे, इसको आप कंबाइन करोगे और
एल्काइल हैलाइड के साथ। जैसे जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम यू वांट इन द केस ऑफ पर्टिकुलर एल्काइन, उसमें आप उतने कार्बन एटम वाला एल्काइल हैलाइड ऐड कर दो। मान लो मुझे 2 से 4 पे जाना, तो 2 तो ऑलरेडी है ही है, तो 2 वाला और ऐड कर दिया, तो इसमें क्या आ जाएगा, NaBr बाहर चला जाएगा और रिएक्शन में बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C2H5। देखो हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे, हम 2 कार्बन एटम से स्टार्ट हुए थे, 1 2 3 4, तो हम पहुंच गए ब्यूट 1 आइन पे। 3 कार्बन वाला आपको बनाना है तो उसमें आपको मिथाइल ब्रोमाइड ले लेना था। 5 वाला बनाना है तो प्रोपाइल ब्रोमाइड ले लेना था। तो दिस इज अ प्रेपरेशन ऑफ ब्यूट आइन। तो ये कन्वर्जन हो गया इथाइन टू ब्यूट 1 आइन। This type of the reaction you have to proceed when you want the more number of the carbon atoms in the alkyne, ascending of a chain पे जाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बस इसमें ये 2 ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और एक असेंडिंग ऑफ अ चेन के लिए कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। नेक्स्ट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, कैसी रिएक्शन देंगे, वो तो आपको समझ आ ही गया होगा अब तक। रिगार्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज, बेटा जहाँ पे भी अनसेचुरेशन होता है वहां एडिशन रिएक्शन होगा। यस, केमिकल प्रॉपर्टीज एज द alkynes are unsaturated hydrocarbons so they will give addition reactions, इसलिए वो addition reactions देंगी हमें। तो रिगार्डिंग द एडिशन रिएक्शन, द फर्स्ट इज द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, यानी कि द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन। तो ये तो बहुत इजी है बेटा, 2 स्टेप में करना पड़ेगा आपको। पहले स्टेप में तो आप अनसेचुरेशन कंप्लीटली खत्म नहीं कर पाओगे। इथाइन में अगर आपने हाइड्रोजन का एडिशन किया तो दैट हाइड्रोजन यू हैव टू ऐड निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम की प्रेजेंस में, देन यू आर गेटिंग द CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरह का आपके पास रिएक्शन आएगा। अगेन यू आर एडिंग, तो ये पहले इथाइन से बन गया इथीन, तो इथीन यू हैव प्रिपेयर्ड। ओके जी, देखिए लाभ बैक स्लाइड। डन मैम। ओके, तो बेटा इसमें अगर एक और मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड कर दोगे तो अनसैचुरेशन कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, वो CH3 हो जाएगा। आई डोंट फाइंड इट कि मुझे इसका मैकेनिज्म करके दिखाना चाहिए, सबको क्लियर है। किसी एक साइड पे बॉन्ड शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड प्लस माइनस आएगा, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, उसे प्लस माइनस में करो चेंज और माइनस प्लस कंबाइन करवा दो, तो यू कैन ऑब्टेन द इथाइन से कन्वर्जन हो सकती है इथेन की। ठीक है, तो सेकेंड टाइप ऑफ द रिएक्शन इज इन द सिमिलर वे यू कैन ऐड द हैलोजन ऑल्सो। तो देयर इज एडिशन ऑफ हैलोजन। अबाउट दिस रिएक्शन आई वाज टॉकिंग अबाउट कि देखो जैसे मैंने 3 कार्बन वाला ले लिया, आप CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसके साथ ब्रोमीन का एडिशन कर दिया। अब ब्रोमीन वाटर बोलते हैं इसे। अब ब्रोमीन का तो कलर होगा, है ना, इट इज हैविंग सम कलर। तो जब इसका रिएक्शन होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे तो ये कलर लेस हो जाएगा, क्योंकि इसका इसमें एडिशन हो गया, तो ब्रोमीन वुड नो मोर बी देयर। तो दिस इज अ Br हेयर, दिस इज अ Br हेयर, यहाँ पे भी C आ गया, यहाँ पे भी Br, यहाँ पे भी Br, एंड हेयर इज अ H। तो दिस इज 1 2 3। इसको लेंगे दूसरी साइड से नंबरिंग 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो and then is a propane. So this is how its IUPAC name would go. Okay, क्योंकि जिस साइड पे हमें कम नंबर मिल रहा है, जिस कार्बन पे प्रीफिक्स लगे हैं, दैट टाइप ऑफ द नंबरिंग विल प्रेफर। अब यहाँ पे ब्रोमीन का जैसे कुछ ब्राउन कलर है, तो ये आ गया आपका कलरलेस। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। देखो अगर आपको टेस्ट ट्यूब में एक साइड पे एल्कीन दे दिया
या एल्काइन दे दिया और दूसरी साइड पे दे दिया आपको एल्कीन, तो एल्कीन्स और एल्काइंस ये टेस्ट देंगी, एल्केन्स नहीं देंगी, उसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। एंड दिस इज नॉट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इन एंड आइन, दिस इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एन फ्रॉम इन एंड आइन। This is called as a test for unsaturation, and the name of this test is called as a bromine water test, Br2 water test. नेक्स्ट थर्ड इज द, यहाँ पे बाकी जितना भी आपका अनसेचुरेटेड में एडिशन, अनसिमेट्रिकल में एडिशन होगा वो सारा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, तो थर्ड में हम वो अप्लाई करेंगे। जैसे है एडिशन ऑफ द हैलोजन एसिड्स, एडिशन ऑफ द हैलोजन एसिड्स। तो रिगार्डिंग द एडिशन ऑफ द हैलोजन एसिड्स, पहले सिमेट्रिकल में करके देखते हैं। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इस पे मैंने HBr को ऐड किया, तो यहाँ पे तो आपको लिबर्टी है, आप किसी भी साइड किसी को ऐड कर सकते हो, बिकॉज ये सिमेट्रिकल है, तो चाहे आप इधर को बॉन्ड शिफ्ट करो चाहे दूसरी साइड पे शिफ्ट करो, इट्स ओके। तो प्लस है तो प्लस के साथ माइनस जाएगा, तो ये लग जाएगा CHBr, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे लग गया CH2। तो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे अगर हैलोजन अटैच है तो इसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड, यहाँ पे ये बनेगा विनाइल ब्रोमाइड। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द विनाइल ब्रोमाइड इन दिस स्टेप। उसके बाद फिर से HBr ऐड करोगे, तो यहाँ पे ना जहाँ पे पहले H है वहीं पे दूसरा हैलोजन जाएगा, तो CH3 लगेगा और यहाँ पे बन जाएगा आपका Br यहाँ पे और Br यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, 1 और 2। नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज अ 1,1 डाइब्रोमो इथेन, ठीक है। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे एक ही कार्बन पे दो एडजेसेंट ग्रुप लगे हैं, तो उसको क्या बोला था आपको, जेम डाइहैलाइड बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ जेम डाइहैलाइड दैट इज फॉर्म्ड। एंड इफ यू आर हैविंग द सम अनसिमेट्रिकल वन, तो वहां पे एडिशन करोगे आप ऑन द बेसिस ऑफ द मार्कोनिकॉफ रूल। सो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr, इफ यू परफॉर्म दिस एडिशन तो यहाँ पे आपको मार्कोनिकॉफ रूल लगाना पड़ेगा। दिस इज प्लस माइनस, तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट अटैकिंग रिएजेंट का will join to that carbon atom which is containing the lesser number of hydrogen atom. lesser number of hydrogen atom पे नेगेटिव जाना है तो ऑब्वियसली उस पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तो इसको इस तरह से शिफ्ट होना चाहिए, तो ये नेगेटिव यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। तो दिस वुड बी CH3 C, इसके साथ Br जाएगा और डबल बॉन्ड CH2, तो इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि इससे डबल बॉन्ड को कम नंबर जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ 2 ब्रोमो, this is a 2 bromo and then is a prop, just a minute। So this is a 1,1 dibromoethane gem dihalide, this is formed. And this is a case when you are dealing with your prop. This is your prop 1 तो इस तरह से मार्कोनिकॉफ रूल का एडिशन जाएगा, then you are dealing with this type of the compound. Okay, so can you perform the Markovnikov rule addition in the case of the alkynes now?
कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इसमें? शुड आई No. टेक मोर एग्जांपल और दिस इज इनफ? Ma'am, enough. Okay. So next there is addition of water. This too will go as the Markovnikov rule. So next is the addition of water. So regarding the addition of water, पहले हम करेंगे इसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस वाटर. तो बेटा नॉर्मल मैंने सिमेट्रिकल वन आई हैव टेकन. तो सिमेट्रिकल वन में तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. कैसे फॉर्म होगा प्रोडक्ट? H प्लस एंड द OH नेगेटिव वुड बी देयर. एंड किसी भी कार्बन पे आप कुछ भी अटैच कर सकते हो. तो यहाँ पे आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड एंड CHOH. बट हेयर वन स्टेप इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज दैट स्टेप? देखो इसका फॉर्म ये क्या बना है आपके पास. ये बना है इन और ओल. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो आपने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के बारे में सुना होगा. तो दिस इज अ इनॉल फॉर्म. और ये फॉर्म है आपकी, ये एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है कीटो के साथ. देखो इसको कैसे समझना है, इसको ना आप 1 2 3 लगा के समझ लो. ये जो आपका प्रोटॉन है ना, ये नंबर 1 से नंबर 3 पे चला जाएगा. अभी ये नंबर 1 पे इस ऑक्सीजन के साथ है, ये 2 है, ये 3 है. तो रफली आपको ऐसे समझना है, ये जो OH का बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. तो जब ये नेगेटिव होगा ना तो ये हाइड्रोजन को ले लेगा. तो ये बन जाएगा CH3, डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, और यहाँ पे आ जाएगा O और C के बीच में डबल बॉन्ड. तो ये इसकी बन गई कीटो फॉर्म. कीटोनिक ये ग्रुप है, कीटो फॉर्म. अदरवाइज ये कंपाउंड का नाम क्या है? कंपाउंड का नाम है इथेनॉल. This is called as a ethanol. So this is a one of the conversion. What was the name of this compound? This compound is a ethyne. ये conversion देखो क्या हो गई. This is we have started from the ethyne and we have reached till the ethanol. तो ये alkyne से convert कर दिया हमने aldehyde में. तो this is the reaction ethyne to ethanol. ओके. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द कन्वर्जन. और इस आइसोमेरिज्म को बोला जाता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. यहाँ पे 1 3 प्रोटॉन ट्रांसफर होता है. दिस इज कॉल्ड एज अ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म और द आइसोमेरिज्म. लेट्स टेक द अनसिमेट्रिकल वन. और अनसिमेट्रिकल वन में देखते हैं क्या बनता है. तो दिस इज अ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH. इसमें जब आप वाटर का एडिशन करोगे तो हियर यू हैव टू अप्लाई द मार्कोनिकॉफ रूल. दिस इज अ H प्लस एंड दिस इज अ OH नेगेटिव. तो नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट का कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे कम हाइड्रोजन एटम है, यानी कि इस कार्बन एटम पे. तो दिस वुड बी CH3 COH would be here and triple bond will convert to the double bond and then is a CH2. अब इसको देखो ध्यान से कैसे सिखाया था. ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है. OH के इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट करोगे. जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये प्रोटॉन को ले लेगा. तो ये एक तरह का कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा. CH3 C और O के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा CH3. फिर से ये कौन सी फॉर्म थी? इनॉल फॉर्म थी. और ये किस फॉर्म में आ गई? इक्विलिब्रियम में, कीटो फॉर्म में. तो यहाँ पे भी आप प्रोप 1 आइन को कन्वर्ट कर सकते हो एसीटोन में. दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ द कन्वर्जन एंड द नेम ऑफ दिस इज प्रोप 1 आइन. 1 आइन तो ना भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि जहां पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करोगे ऑलवेज, तो ये 1 आइन ही रहेगा. उससे कन्वर्ट हो गया ये एसीटोन में. तो इज दैट क्लियर कैसे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बनाते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. तो नेक्स्ट इज polymerization reaction. This is the last reaction for the alkynes. Polymerization reaction. Polymerization reaction just we have done in the case of your, वैसे तो ये polymerization आपका 12th की केमिस्ट्री में भी आता है, पूरा चैप्टर ही है आपको. Polymerization reaction में in the case of the alkenes we have done with the polyethene and PVC बनाया था या स्टाइरिन वगैरह, वो सब आप polymerization चैप्टर में भी पढ़ोगे. Here from the alkyne perspective polymerization reaction में इथाइन से आप प्रिपेयर कर सकते हो बेंजीन.
लेट्स चेक आउट हाउ, पहले तो आप इसमें दो टाइप का पॉलीमराइजेशन लिखो, एक तो होता है इसमें लीनियर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इन द केस ऑफ द लीनियर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जैसे कुछ भी है, लेट अस से कि CH डबल बॉन्ड, कुछ ऐसा कंपाउंड है आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये मैंने लिखा है 1,3 ब्यूटाडाइन। अगर आपने इसके n मॉलिक्यूल्स ले लिए और इसकी पॉलीमराइजेशन कर दी, तो एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन एक सिंपल सा बस बात याद रखनी है आपको कि जहां पे डबल बॉन्ड है पहले वहां पे सिंगल बॉन्ड कर दो, जहां पे सिंगल है वहां पे डबल कर दो, और इसको इस तरह से लिख दो। देखो एक इसको ऐसे लगा के लाइन CH2 नाउ देयर विल बी, क्योंकि ये आगे आगे कंबाइन कर लेगा ना, ये ऐसे ऐसे इस तरीके से चेन प्रोपागेट करेगी। CH2 CH, now here is a double bond CH CH2 and here is a linkage, so this is N, so this is called as a polybutadiene। तो इस टाइप से होती है लीनियर पॉलीमराइजेशन। बाकी इसका एक फेमस रिएक्शन है, that is a cyclic polymerization। Now what happened in the case of the cyclic polymerization? See, cyclic polymerization is very easy। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के केस में लेट अस से कि 3 मॉलिक्यूल्स वी हैव टेकन फॉर द एसिटिलीन। मैं इसको इसी पैटर्न में लिख देती हूँ ताकि जब बाद में प्रोडक्ट बने तो यू कैन इजीली विजुअलाइज। ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज CH एंड दिस इज अ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखो जब पॉलीमराइजेशन होगी तो ये इस तरह से एक एक पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा आप किसकी बन रही है। 6 टाइम्स CH वुड बी देयर, जो एक एक बॉन्ड शिफ्ट हुआ है वो सिंगल डबल इस फॉर्म में अपीयर होगा। तो ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई? बेंजीन की। एज अ रिजल्ट ऑफ द पॉलीमराइजेशन, अबव द एरो यू कैन सी रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन, और 873 केल्विन। तो इतना हीट करे पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन, तो ये कन्वर्जन हो गया इथाइन टू द योर दिस वन बेंजीन। So this is all about your alkynes. Now the last portion of this chapter is the aromatic hydrocarbons, that is a aromaticity. Then we'll continue with the next portion. So is that clear? यहाँ तक clear है सभी को? Yes, Yes, ma'am. Okay. So next is the aromatic hydrocarbon. What do you understand by the aromatic compounds? किसको बोलते हैं aromatic compounds? Which contain at least one benzene ring. जिसमें at least एक benzene ring होता है, those are called as a aromatic hydrocarbons। और aromatic word कैसे आया है? What do you meant by the term aromatic? किसको बोलते हैं? Then aroma, fragrance. और बेंजीन क्यों स्टेबल है? What is the reason behind the stability of the benzene? Resonance, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो delocalize हो जाते हैं। हाँ, बस वही इस चैप्टर में पढ़ना है, और दैट आई थिंक यू माइट हैव डन इन योर 12th पोर्शन आल्सो ना। 12th में भी तो करते हो ना। किस टाइप के रिएक्शन देता है आपका बेंजीन? Whether it gives the addition reaction या substitution reaction, what type of reactions? मैम एडिशन। एडिशन नहीं देता, यही तो बात है ना, क्योंकि उसमें रेजोनेंस के कारण इतनी स्टेबिलिटी आ जाती है कि वो अपना जो डीलोकलाइजेशन है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इट अंडरगो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट विल अकर्स इन द केस ऑफ द बेंजीन। बस यही बात है इसमें, बाकी तो सब इजी एग्जांपल्स हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, देखो बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एरोमा का मतलब स्वीट स्मेलिंग, प्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड्स आर देयर। इसका जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो बेंजीन है। बेंजीन की जो अव्वली स्ट्रक्चर जो आप पढ़ते हो, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, वो कैकुली ने दी है। द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज अ कैकुली। और उससे पहले इसकी कुछ स्ट्रक्चर्स भी बनती थी जिसको हम दीवार स्ट्रक्चर्स बोलते थे, शायद कहीं कहीं बुक्स में आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H6 है। बेंजीन की साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ऐसे पहले साइक्लोहेक्सेन होता है, उसके बाद इसमें इस तरह से अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स आर देयर। एंड बेंजीन में क्या होता है ना, जैसे कि अब आप लोग बता ही रहे थे, नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ द डीलोकलाइजेशन, मींस द इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिक्स्ड इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन। जो पाई के इलेक्ट्रॉन, देखो सिग्मा तो होते हैं लोकलाइज, सिग्मा तो इलेक्ट्रॉन्स वहीं पे रहेंगे। पाई जो है वो कीप ऑन रिवॉल्विंग है इसमें,
तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 में फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर से सिंगल बॉन्ड है, सेकेंड वाली स्ट्रक्चर से डबल बॉन्ड है. तो here the delocalization of the electrons is taking place. Delocalization of the pi electrons takes place. As a result of delocalization, the energy is released. रेजोनेंस में भी तो क्या होता है, रेजोनेंस में भी तो डीलोकलाइजेशन ही होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है. एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस एनर्जी. रेजोनेंस एनर्जी के कारण बेंजीन स्टेबल होता है. दैट इज द रीजन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन. ठीक है, बाकी इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं रहती, इट विल कीप ऑन रिवॉल्विंग. ठीक है, ये मूव करता रहता है. तो हम इसकी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर दे देते हैं. वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है. आपको रेजोनेंस में भी बताया था मैंने, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, तो दैट्स व्हाई द बेंजीन इज हैविंग द एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी. बाकी बेंजीन की अगर आप ऑर्बिटल पिक्चर को स्टडी करोगे तो इट इज जस्ट लाइक all the carbon atoms are sp2 hybridized. देखो सिग्मा बॉन्ड तो बना हुआ है, बाकी हर एक कार्बन एटम पे एक एक p ऑर्बिटल प्रेजेंट है. अब ये p ऑर्बिटल क्या करता है ना, p ऑर्बिटल में पहले तो ये अपर वाली जो लॉब्स हैं ये बॉन्ड बनाती हैं. उसके बाद ये डाउनवर्ड वाला है जो, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर, जो आपका डाउनवर्ड वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये बनाएगा. तो बेसिकली ये कुछ एक सैंडविच की तरह स्ट्रक्चर हो गया. जैसे मैं एक येलो कलर का अलग से बना दूं इसको, तो एक येलो कलर का रिंग था और उसके बाद एक वाइट कलर का अप में और रेड कलर का डाउन में. इस तरह से बेंजीन उनके बीच में एक सैंडविच की तरह है. तो दिस इज अ सेक्सटेट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. दिस इज कॉल्ड एज अ सेक्सटेट ऑफ द पाई क्लाउड और द इलेक्ट्रॉन. ये इसके बीच में रिवॉल्व करता है. दैट इज कॉल्ड एज अ डीलोकलाइजेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाता है. यहाँ पे 6 pi electrons are there and the sp2 hybridization is there. All the carbon atoms are sp2. So is that clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So this is regarding the structure of the benzene and the resonance of benzene. तो बेंजीन का रेजोनेंस इज द रीजन बिहाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन एटम. एंड यहाँ पे बेंजीन के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड. जैसे कि मैंने बोला ही नाम ही इसका सारे कंपाउंड का एरोमेटिक है. तो यहाँ पे ना एक रूल आता है दैट इज कॉल्ड एज अ हक्कल्स रूल. हक्कल्स रूल फॉर डिटरमिनिंग the aromaticity. Regarding the Huckel's rule for determining aromaticity, I will tell you the sum of the conditions ki how you will check ki whether this compound is aromatic or not. तो Huckel's rule basically हमें देता है conditions for checking aromaticity. Conditions for checking whether the compound is aromatic or not. Whether the compound is aromatic और नॉट. आपका कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं उसको चेक करने के लिए हक्कल्स रूल है. तो फर्स्ट कंडीशन है इसकी कि आपका होना चाहिए कंपाउंड साइक्लिक एंड प्लेनर. कभी भी कोई भी बच्चा एग्जाम में ऐसी चेन को तो कम से कम नहीं लिख के आएगा कि एरोमेटिक है, मतलब जिसमें आपका रिंग ही प्रेजेंट नहीं है. तो ये क्या होना चाहिए, साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए. ठीक है, साइक्लिक एंड प्लेनर के साथ भी मैं आपकी कंडीशन लिख देती हूँ कि जो sp हाइब्रिडाइज्ड हैं एंड sp हैं वो साइक्लिक एंड प्लेनर हो सकते हैं. जितनी भी अब तक आपको एग्जांपल्स एग्जाम में आई हैं वो sp2 से आई हैं. ठीक है, sp वाला भी केस नहीं आया. बाकी सबको पता है कि sp भी आपका 3D स्ट्रक्चर नहीं है, वो लीनियर होता है. सबको बनानी आती है sp की स्ट्रक्चर, यस और नो. sp3 स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हो तो sp3 स्ट्रक्चर है आपकी 3D स्ट्रक्चर, जिसमें अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, इन द प्लेन, इस तरह के कंपाउंड एटम्स के ग्रुप्स के अरेंजमेंट दिए होते हैं. तो पहला तो ये चेक कर लेना कि या तो sp2 हो या sp हो.
सेकेंड कंडीशन इज कि उसमें होना चाहिए डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. Delocalization of pi electrons should be there, means electrons resonance में होने चाहिए. There should be the presence of the resonance in the structure. And the third structure is उसमें 4n plus 2 pi electrons should be there. मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का काउंट है वो इस फॉर्मूला को ओबे करना चाहिए, और जो n की वैल्यूज हैं दे मस्ट बी योर 0 1 2 लाइक दिस ओनली. 0 1 2 अप टू सो ऑन. 0 1 2 को बोलते हैं हक्कल्स नंबर. ठीक है, मतलब कोई फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पे नहीं जानी चाहिए, ये होल नंबर में पुट करके वैल्यूज आनी चाहिए. This is how you are going to determine the aromaticity. Now let's check out these conditions first for the benzene only. Is that clear? Yes, ma'am. Now let's check out for the benzene first कि benzene में क्या खुद में ये सारी conditions obey होती हैं. Is it a cyclic and planar? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How do you know? Because it is sp2 hybridized ना. Cyclic तो नजर आ ही रहा है, बाकी planarity के लिए sp2 hybridization से पता लग गया. क्या इसमें delocalization है? See, this is Yes. moving here, this is moving here, this is moving here. So when you are checking out for the delocalization, you have to just check out only for the resonance. Delocalization भी है. Yes. And what would be the next? कितने हैं इसमें पाई? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4n plus 2 पाई को 6 के बराबर रख दो, क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो कैलकुलेट कर लो वैल्यू. पाई से पाई कैंसिल हो गया. 4n is equal to 4. This implies n is equal to 1. Is the n one Huckel number? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is the Huckel's number. तो yes it is aromatic. तो बेंजीन के बारे में तो कोई शक ही नहीं है ना, बेंजीन से ही तो बाकी सारे एरोमेटिक बने हैं. Now let's check out for the other compounds. Cyclopentadienyl ऐसे है. अब देखो यहाँ पे पहली बात तो साइक्लिक है, यस है. प्लेनर है, यस है. प्लेनर के लिए क्या है? प्लेनर के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे. दूसरा डीलोकलाइजेशन है. देखो डीलोकलाइजेशन इसकी तब होगी जब इसको भी पार्टिसिपेट कराओगे. दिस वुड बी हेयर, दिस वुड बी हेयर. तो हाउ यू कैन गिव द स्ट्रक्चर? द स्ट्रक्चर कैन बी लाइक दिस इज हेयर. नहीं, एक स्टेप पीछे आएगा. तो हेयर वुड बी द डबल बॉन्ड एंड हेयर वुड बी द नेगेटिव एंड दिस. तो यस डीलोकलाइजेशन भी है. ठीक है ना. तो डीलोकलाइजेशन भी है. डीलोकलाइजेशन. तो लेट्स चेक आउट फॉर द हक्कल्स नंबर. कितने हैं इलेक्ट्रॉन? जितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है वो सारे पाई में गिनने हैं, तो इसके ये वाले भी पाई में गिनने हैं. तो इसमें 4n जो आपके पास हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें भी. 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. तो 4n plus 2 पाई को 6 पाई के बराबर रख लो. फिर से आपका आंसर n का कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. तो 1 तो हक्कल नंबर है. इसी तरीके से हम पायरोल देखते हैं. ये n और h, और n के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो साइक्लिक है ये भी, प्लेनर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है. फिर उसके बाद इसमें डीलोकलाइजेशन है. डीलोकलाइजेशन इसमें होती है जब आप नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लोगे, तब पायरोल में आपका NH यहाँ आ जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव, तो आपका रेजोनेंस आगे बढ़ता है. ठीक है. तो यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन है. बाकी आपको समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपका 4n plus 2 पाई, यहाँ पे भी 6 है. ठीक है. तो ऐसी इसको बोलते हैं पायरोल. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ पायरोल. ऐसे दो इसके और हेट्रोजीनियस कंपाउंड है. जैसे आपका एक हो गया योर फ्यूरान. ठीक है. थायोफीन. अब इसमें क्या है ना, इसमें दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पे सल्फर है, ये इसका सल्फर एनालॉग है.
अब आप बोलोगे ये दोनों तो एरोमेटिक नहीं है, ये भी एरोमेटिक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में जाता है, दूसरा नहीं जाता, ये लॉन पेयर ही रहता है, तो ये लॉन पेयर ही रहेगा, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में जाएगा, तो ये दोनों भी एरोमेटिक है। हाँ, ये अलग बात है कि एरोमेटिसिटी का ऑर्डर इनमें डिफरेंट है, मींस दो सब बराबर के एरोमेटिक नहीं है। देखो, जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर डीलोकलाइजेशन में जाने देता है, उसके केस में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है और वो ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर रखता है और दूसरा कम रखता है। तो ध्यान रखोगे ना, फ्यूरेन और थायोफीन में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर लॉन पेयर एज इट इज रहेगा, वो डीलोकलाइजेशन में नहीं जाएगा। तो पेपर में इसको 8 मान के नॉट एरोमेटिक मत कर देना, ये भी एरोमेटिक है। अब पेरिडीन की एग्जांपल ले लो, ये पेरिडीन की एग्जांपल है। अब पेरिडीन की एग्जांपल में हाँ जी साइक्लिक है, प्लेनर है, सब कुछ है, डीलोकलाइजेशन। अब अगर तुम ये भी काउंट करने लग जाओगे तो आप देखो ना, इस कंपाउंड को स्टेबिलिटी के लिए ये इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, तो वो क्या करता है, वो सिर्फ यही वाले इलेक्ट्रॉन अपने यूज करता है, यही वाले इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में जाते हैं, फिर वैसे ही लग गए। ठीक है, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, इसको ये चाहिए ही नहीं, ये लॉन पेयर रहता है, तो ये भी एरोमेटिक है। तो आपको ध्यान देना है पेपर में कि कई बार लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, पायरोल में जाता है, ऑक्सीजन में एक पेयर जाता है, फ्यूरेन में, और थायोफीन में भी एक पेयर जाता है, तो ये भी एरोमेटिक है, इसमें भी एक पेयर ही जाता है, इसमें ये जाता ही नहीं है क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ये है साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल एनायन, ऐसे कंपाउंड भी आपको पेपर में आ सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसे है, लेट अस सपोज कि कैटायन है, ठीक है, या ऐसा कोई कैटायन आ गया पेपर में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कॉन्सेप्ट आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखो, इस पॉजिटिव को मैनेज करने के लिए है तो है ना डीलोकलाइजेशन, इस पॉजिटिव को मैनेज करने के लिए डीलोकलाइजेशन है, तो यहाँ पे 4n+2 की वैल्यू पाई की 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ पे 4n+2 पाई की वैल्यू कितनी है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू 0 आ जाएगी, और 0 भी एक हक्कल नंबर है, तो ये दोनों भी एरोमेटिक है। तो पेपर में बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है। पहली बात तो स्ट्रक्चर आउट ऑफ प्लेन नहीं जानी चाहिए, कई बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे टब शेप स्ट्रक्चर चली जाती है किसी की, अगर 8 वाले में चले जाओगे तो टब शेप स्ट्रक्चर में कहाँ फिर एरोमेटिक कैरेक्टर आएगा, क्योंकि अगर वो आउट ऑफ प्लेन ही हो गया। ठीक है, ऐसे ही नेप्थेलिन देख लेना, एंथ्रासीन देख लेना, फिनेंथ्रेलिन देख लेना। नेप्थेलिन की स्ट्रक्चर क्या होगी, ये नेप्थेलिन की स्ट्रक्चर है जिसमें 2 बेंजीन रिंग आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो ऐसा होगा। देखो, अब ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये दोनों की नीड को पूरा कर रहा है, तो वैसे ही समझ लो, इधर से भी एरोमेटिक है, इधर से भी एरोमेटिक है, नहीं तो अदरवाइज 6 to 8 और to 10, तो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो भी एक हक्कल नंबर है। ठीक है, ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर द एरोमेटिक कंपाउंड। इज दैट क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. नेक्स्ट इज अ मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ द बेंजीन ही करेंगे यहाँ पे। एक मेथड ऑफ प्रेपरेशन तो हम इसका पहले ही पढ़ चुके हैं, याद है, एल्काइंस के केस में साइक्लाइजेशन करके हमने साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से बनाया था तो वहां पे ये मेथड वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। याद है या नहीं? अभी 3 molecules of alkynes we have taken and the cyclic polymerization से we have done for that। तो एक मेथड वो हो गया। सेकेंड मेथड यू पीपल कैन टेक द डीकार्बोक्सिलेशन, जैसे उसमें पढ़ा था एल्केन्स में, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, या एरोमेटिक एसिड्स लिख लो, दिया था ना कॉब्स रिएक्शन में भी। यस मैम। तो आप यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ले लोगे, फिर से किसके साथ ट्रीट करते हैं, NaOH के साथ ट्रीट करते हैं CaO की प्रेजेंस में। तो बाकी सबको पता है कि इसमें से ये जो है आपका ग्रुप Na2CO3 रिलीज कर देगा और बाहर यहाँ पे बन जाएगा आपका बेंजीन। ठीक है, तो दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। पहले भी ये मीथेन का लैब प्रेपरेशन था। ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स वी हैव प्रिपेयर्ड द बेंजीन बाय द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट रिएक्शन यू कैन टेक इज अ रिडक्शन ऑफ द फिनॉल्स। फिनॉल्स की रिडक्शन का क्या रिएक्शन है, तो बेसिकली यू पीपल कैन टेक द फिनॉल
फिनोल्स की रिडक्शन करोगे आप किसकी प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में। तो जिंक की प्रेजेंस में करोगे, हीट ही करना है बस इसको, तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है ये जिंक के अंदर चला जाएगा। तो इस कार्बन को मिल जाएगा ऊपर वाले को, तो वहां से आपने हाइड्रोजन हटा के ही तो ये OH ग्रुप लगाया था, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो दिस इज हाउ द बेंजीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फिनोल। ठीक है, बाकी कैसा कंपाउंड है, इज इट एरोमेटिक, एंड दिस दीज टू आर ओनली द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इज इट एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, सॉरी नॉट एरोमेटिक, पोलर और नॉन पोलर, एरोमेटिक तो है ही है। दिस इज अ नॉन पोलर, ठीक है, तो नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा, वाटर में ये भी डिसॉल्व नहीं होता है। तो जी बेंजीन इज अ नॉन पोलर बेटा। तो नेक्स्ट इज द रिएक्शंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात आप याद रखोगे कि ऑल्दो the benzene has the 3 pi bonds, benzene has the 3 pi bonds, yet it doesn't undergo the addition reaction, it doesn't undergo the addition reactions, rather it will undergo the electrophilic substitution reactions, electrophilic सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। मतलब बेंजीन न्यूक्लियस के रिएक्शंस हैं ये, तो जहां भी आप कोई फंक्शनल ग्रुप भी ऊपर लगा लोगे तो ये बेंजीन न्यूक्लियस के रिएक्शन होंगे ही होंगे। देखो होना तो ऐसे चाहिए कि इसके पास 3 एल्कीन्स के बराबर डबल बॉन्ड है, तो इसको डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेना चाहिए एडिशन रिएक्शन देके। पर अगर डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेगा तो जो रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होती है या जो इसकी स्टेबिलिटी है, जो इसकी एरोमेटिसिटी है, वो खत्म हो जाएगी। कोई भी सिस्टम अपनी एरोमेटिसिटी लूज नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए ये कैसे रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे आसान रिएक्शन होते हैं, आपको बस H+ को हटाना और उसकी जगह पे इलेक्ट्रोफाइल लगाना है। मतलब जो भी आपको रिएजेंट दिया होगा आपको बस उसमें से इलेक्ट्रोफाइल पहचानना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। अब जैसे पहला रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में अगर आपने पहचानी, इसका मैकेनिज्म करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, वैसे मैं एक स्टेप बता दूंगी आपको कि क्यों होते हैं ये रिएक्शन। क्योंकि इसमें जो कार्बोकैटायन बनते हैं या कार्बेनाइन, देखेंगे कैटायन बनता है नाइन बनता है, तो वो आप खुद बताओगे, रेजोनेंस स्टेबलाइज बनता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। आज मैंने इतना बड़ा लिखा है, आगे से मैं HNO3 और H2SO4 लिख के 1:1 डाल दूंगी, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 1:1 मिक्सचर है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं इसको। तो 323 से लेके 333 केल्विन पे रिएक्शन जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल है क्या। देखो इसको ना बहुत इजी है स्प्लिट करना। बेंजीन से हमें क्या मिलेगा, अभी हमने डिस्कस कर लिया, बेंजीन से H मिलेगा। तो अगर बेंजीन से H मिलेगा तो बाकी से OH मिलेगा, ताकि वाटर रिलीज हो जाए। तो OH को हटा दो, बाकी क्या बचा, NO2 बचा ना, तो NO2 प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये वाला पोर्शन इसका इलेक्ट्रोफाइल है, बस इतना ध्यान होना चाहिए। तो NO2, डोंट टॉक इन बिटवीन, ऑलवेज बी ऑन म्यूट। So this is a NO2 that will attach over to the benzene ring and the water is released. That's it. बस कुछ भी नहीं करना होता है इस reaction में. You have to just find out the electrophile and then to carry forward the reaction. ठीक है. Next reaction है halogenation. Next reaction is the halogenation. Halogenation reaction में halogen carrier का use होता है. ये रहा बेंजीन, बेंजीन में Cl2 लगाया, यहाँ पे लगता है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या करता है, ये एक लुईस एसिड है देखो। तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 Cl2 से रिएक्ट करेगा, पहले AlCl4 नेगेटिव जनरेट कर देगा। अब AlCl4 नेगेटिव एक, ये मतलब ये हैलोजन कैरियर है, हैलोजन को उठा के बेंजीन रिंग तक लेके जाता है। तो यहाँ से क्या आएगा, H+ आएगा ना, तो H+ Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन कर लेगा, ठीक है। तो एक Cl यहाँ पे कंबाइन कर लेगा, दूसरा Cl उसके ऊपर लग जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। दिस इज हैलोजनेशन। ऐसे ही है सल्फोनेशन, और ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेंगे रिएक्शन। सल्फोनेशन में क्या होगा, सल्फोनेशन में बेंजीन रिंग ले लो आप, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एडिशन करवा दो। सल्फ्यूरिक एसिड गया आपका H2SO4, ठीक है। H2SO4 की SO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। इसमें से भी आपको देखो H+ यहाँ से मिलेगा,
तो यहाँ से OH नेगेटिव और SO3H पॉजिटिव जाएगा, यानी कि ये पार्ट आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो इलेक्ट्रोफिलिक वाला पोर्शन आप बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दो SO3H, और इसका जब नाम लिखोगे ये पूरा नाम जाएगा, बाकी वाटर रिलीज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। Name of this is a benzene sulfonic acid. Okay. Next reaction is the Friedel-Crafts acylation and the alkylation. That is the Friedel-Crafts alkylation and the acylation. तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन में क्या होता है, जस्ट टेक द बेंजीन रिंग अगेन और उसके बाद CH3Cl लेंगे, CH3Cl का रिएक्शन फिर से एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ करेंगे। बेटा आपको पॉजिटिव जनरेट करना है, यहाँ पे तो साफ साफ ही नजर आ रहा है कि पॉजिटिव क्या है। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन जाएगा, CH3 यहाँ पे लग जाएगा और HCl यहाँ पे। तो ये किसका फॉर्मेशन होगा, ये टॉलुइन का फॉर्मेशन हो गया। सेम रिएक्शन अगर आपको एसाइलेशन करना है, ये तो एल्काइलेशन था, एसाइलेशन में आपका लगेगा CH3COCl। अब की बार क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट दिस वन, तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड अभी भी लगेगा, ये सेम है। तो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा एसिटाइल ग्रुप COCH3 प्लस HCl। तो ये हो गया एसिटोफिनोन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड द एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, बाकी बेंजीन की 6 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करोगे तो BHC बन जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एक बार देख लेना उसको। अब ये क्यों होते हैं रिएक्शन, व्हाट इज अ रीजन, देखो इसका रीजन ये है, अगर आप बेंजीन को इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करोगे तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे होगा, कहीं पे भी इलेक्ट्रोफाइल लगा लो और यहाँ पे भी सपोर्ट के लिए H रख लो, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकटायन। और ये जो कार्बोकटायन बनता है ना बेटा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, देखो। तो यहाँ पे बनेगा आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज, दिस पॉजिटिव चार्ज, दिस इज E एंड दिस इज H। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक। अच्छा पहले तो नीचे आएगा फिर जाएगा ऊपर, पहले इसको स्टेबलाइज करना है, तो पहले ये नीचे आएगा यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा E और H, और लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में ये यहाँ पे जाएगा और H बाहर चला जाएगा, अपनी इलेक्ट्रॉन लॉस करके यहाँ पे एरोमेटिसिटी दोबारा जनरेट कर दे। यानी कि बेसिक रीजन इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन। That's why the electrophilic substitution occurs in that. Electrophilic substitution के पीछे कार्बोकटायन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद है इस चैप्टर में डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, मेटा डायरेक्टिंग कौन है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कौन है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं GOC में, जहाँ पे हमने मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट किया है, OH की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिस एंड दैट, और वो फिर आगे भी आ जाएगा 12th केमिस्ट्री में। तो दिस इज ऑल अबाउट इस चैप्टर। हाँ, ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनते हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस वी हैव ऑलरेडी डन इन द GOC चैप्टर। ठीक है, ऑफ 11th, कैसे कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है, मेटा पे कौन से ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं, पैरा पे कौन से करते हैं। तो अगेन जब आप एल्काइल, एराइल, हैलाइड, फिनाइल, फिनॉल वगैरह पढ़ोगे तब फिर से दोबारा ये आ जाएगा एक बार। दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोकार्बन। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so I'm giving you the one reaction. This is not a poll question. You have to just do the reaction and tell me. You have to convert the ethanoic acid into the
benzene. Just check out for the reaction. Take your time. पोल नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करो. इंस्टेड ऑफ पोल कन्वर्जन है.
Yes, has anybody solved? Has anybody solved this conversion or not? Shall I say yes or no, whether you have done or not? Nobody has solved. This silence shows that you have not solved. Okay, when I will come in the next class now, I will first ask you this conversion if you have not done. Okay? इसको thoroughly पढ़ो चैप्टर को, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सा पाथ रूट आपको लेना है. Okay, beta, this is all for today. Rest will continue in the next class. Okay, ma'am.